Hello students, I am Sumit Sharma and today I will teach you how will create a presentation on MS PowerPoint. That is chapter 16 in your class 9th. In the last chapter we have discussed about the presentation, slides, components of a presentation and different presentation softwares, characteristics of a good presentation that we have learned in the last chapter, chapter 15. And today we will start what is PowerPoint, how will we start PowerPoint, and the components of PowerPoint windows, and how to create a presentation from the scratch and using the built-in templates. These topics we will cover today. So before starting, we should discuss what is a PowerPoint. We all know that PowerPoint is a tool, or we can say a software of presentation. We built the presentation in PowerPoint, making we build slides for a presentation in PowerPoint. Making slides for a presentation on a computer using PowerPoint is a very easy and attractive method. मतलब ये है कि पावर पॉइंट जो है एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जो MS ऑफिस सूट के अंदर आता है। ठीक है, और इसमें हम जो प्रेजेंटेशन बनाते हैं वो बहुत इजी होता है और अट्रैक्टिव होता है। इन द स्लाइड्स बाय यूजिंग MS PowerPoint we can manipulate animation effects and sound effects in our slide that helps in creating and maintaining the interest of the audience. एनिमेशन और साउंड इफेक्ट्स हम इसमें डाल सकते हैं MS पावर पॉइंट का यूज करके, जिससे क्या होता है कि जो ऑडियंस हमारी बैठी हुई है जिसके सामने हम प्रेजेंट कर रहे हैं उसका इंटरेस्ट जो है हमारी प्रेजेंटेशन में बना रहता है। ठीक है, तो ये था MS पावर पॉइंट का कुछ छोटा सा ओवरव्यू। अब हम स्टार्ट करते हैं MS पावर पॉइंट पर किस तरह से प्रेजेंटेशन हमें बनानी है, हाउ टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन। So first of all we should know how to start MS PowerPoint. In Windows 10, that is we are using Windows 10. So in Windows 10 to start MS PowerPoint, just click on start button. Look at the pointer arrow of the mouse. This is the start button. Just click on this and we will find this menu. In this menu we will get Microsoft Office. There is that. Yes, Microsoft is Microsoft Office. Click on this Microsoft Office. We will get a span menu. Here we will find Microsoft Office PowerPoint 2007. That is Microsoft PowerPoint 2007. Click करेंगे. Click on it and we will get the MS PowerPoint window. ये हमारी सबसे पहले MS PowerPoint की विंडो ओपन होती है। तो इसके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइटल बार की। ये जो आपको रेड कलर का बार नजर आ रहा है, रेड नहीं कहेंगे इसको, कोई और सा कलर कह सकते हैं। आई थिंक इट में बी डार्क पिंक। यस, दिस इज डार्क पिंक कलर। इस ये जो है हमारा, इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द विंडो and we will see the presentation name, the name of the presentation or file presentation on this, and the software name, that is Microsoft PowerPoint. In the right side we will get three buttons: minimize, maximize, or we can say this restore button, and the close button. This is close button.
This is maximize button or can say restore button, and this is minimize button. Okay, this so it was the title bar. On the left side of the title bar we get the quick access toolbar. इसके राइट साइड में जो होता है क्विक एक्सेस टूल बार होता है, सॉरी इसके लेफ्ट साइड में क्विक एक्सेस टूल बार होता है। आई एम सॉरी, आई अपोलाइज। दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ द टाइटल बार। तो टाइटल बार के लेफ्ट साइड में क्या होता है, क्विक एक्सेस टूल बार होता है। इन क्विक एक्सेस टूल बार वी गेट द कमांड्स दैट आर यूज्ड फ्रीक्वेंटली बाय द यूजर। मतलब ये हुआ कि जो हमारा यूजर होता है, जैसे कि हम अभी इसको यूज कर रहे हैं, सो वी आर द यूजर। तो जो यूजर होता है उसका जो फ्रिक्वेंटली यूज करता है कमांड्स को, वो कमांड्स हमारी क्विक एक्सेस टूल बार में शो होती है। यहाँ पर वी कैन चेंज द कमांड्स शोन इन द क्विक एक्सेस टूल बार by using this drop down arrow. Using this, just click on it and select the commands you want to show in the quick access toolbar and untick the commands that you don't want to show in the quick access toolbar. Just like this, click on save. सेव कमांड यहाँ से जा चुकी है, हाइड हो गई है। अगर हमें दोबारा चाहिए तो हम इस पर फिर से क्लिक करते हैं, ये देखिए ये फिर से आ गई है। अनडू एंड रीडू कमांड इसी तरह से हो सकती हैं, ये देखिए अगर हम इनको लाना चाह रहे हैं तो ये फिर से आ सकती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्विक एक्सेस टूल बार। इसके बाद हम बात करते हैं फाइल टैब की। फाइल टैब क्या होता है कि जो ये हमारा ऑफिस बटन होता है, इसमें हमारे सेविंग की कमांड्स होती हैं, टू सेव आवर प्रेजेंटेशन, प्रिंट द प्रेजेंटेशन, टू सेंड द प्रेजेंटेशन एंड मैनी अदर कमांड्स आर प्रेजेंट इन द फाइल टैब। ये हमारा फाइल टैब होता है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये एक हमारा मेन्यू ओपन होता है, ड्रॉप डाउन मेन्यू, जिसको हम फाइल मेन्यू भी बोलते हैं। इसमें ये सारी कमांड्स होती हैं। जैसे न्यू है तो अगर हमें न्यू का यूज करना है, हमें न्यू प्रेजेंटेशन बनानी है तो हम न्यू यूज करेंगे। ओपन, अगर हमें कोई एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन ओपन करनी है तो हम ओपन यूज करेंगे। ऐसे ये सेव है, सेव एज है, और बहुत सारी कमांड्स है। क्लोज कमांड है और एग्जिट पावर पॉइंट कमांड है। ये सारी कमांड्स हमारी कहाँ पर मिलती हैं, फाइल टैब के अंदर। इसके बाद हमारे पास आता है रिबन। रिबन क्या होता है, इसमें हमारे टैब्स प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे टैब्स होते हैं, जैसे होम टैब है, इंसर्ट है, डिजाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू एंड व्यू। ये सारे टैब्स हमारे रिबन में प्रेजेंट होते हैं। और जिस टैब पर हम क्लिक करते हैं, जैसे यहाँ पर हमारा होम टैब एक्टिवेट है, तो जिस पर हम क्लिक करते हैं उसकी कमांड्स सारी हमारी रिबन में शो हो जाती है। जैसे अगर मान लीजिए मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया तो अब मेरा इंसर्ट टैब एक्टिवेट हो गया है और इसकी कमांड्स हमारी रिबन में शो हो रही है। डिजाइन टैब पर क्लिक करेंगे तो डिजाइन की हमारी कमांड्स यहाँ पर शो हो जाएंगी, थीम्स हो जाते हैं। ठीक है, और रिबन में जो कमांड्स होती हैं, दीज आर ग्रुप्ड इन द ग्रुप। जैसे यहाँ पर पहला है क्लिप बोर्ड ग्रुप, सेकेंड है स्लाइड ग्रुप, फोन ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, ड्राइंग एंड एडिटिंग ग्रुप। ये सारे ग्रुप्स होते हैं, इनमें अलग अलग कमांड्स होती है। ठीक है, अब तो ये था हमारा रिबन। अब बात करते हैं स्लाइड्स पेन की। ये जो हमारा एरिया है जिसमें हमारी स्लाइड, आपको व्हाइट कलर की ये स्लाइड नजर आ रही है, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो भी एरिया है ये हमारा कहलाता है स्लाइड्स पेन। It is the blank area in the middle of the window where you can design the slides. It means हम जो है इसमें एडिट करते हैं अपनी स्लाइड्स को, डिजाइन करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, और जो भी हमें कुछ करना होता है अपने स्लाइड से रिलेटेड वो हम यहाँ पर करते हैं। हम इसको कह सकते हैं कि दिस इज द वर्क एरिया ऑफ द यूजर। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है स्लाइड पेन। अब बात करते हैं स्लाइड टैब की। तो इधर आते हैं, ये हमारा जो एरिया होता है इट इज कॉल्ड स्लाइड टैब्स। स्लाइड टैब्स में क्या होता है कि हमें जो स्लाइड हमारी यहाँ पर ओपन होती है या जितनी भी हमारी स्लाइड्स होती हैं उनका एक मिनिएचर व्यू यहाँ पर शो होता रहता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये 3 स्लाइड्स है तो इनका मिनिएचर व्यू यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं आउटलाइन टैब की। आउटलाइन टैब में क्या होता है,
आउटलाइन टैब में जैसे अभी हमने यहाँ पर मान लीजिए कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, ये मेरा यहाँ पर शो हो रहा है मिनिएचर व्यू में, ठीक है। मैंने यहाँ पर भी मैंने कुछ ऐड किया, टाइटल ऐड किया, और यहाँ पर मैंने इसका टेक्स्ट ऐड किया, यहाँ पर भी मैंने इसका टाइटल ऐड किया, और ये मैंने इसका कुछ टेक्स्ट इसमें मैंने ऐड कर दिया। तो इन सबका मिनिएचर व्यू यहाँ पर आ रहा है। तो आउटलाइन टैब में क्या होता है, आउटलाइन टैब पे मैं जब इस पर क्लिक करूंगा तो जितना भी मेरा टाइटल था और सब टाइटल था वो यहाँ पर शो हो जाएगा, लेकिन जो जितना मेरा कंटेंट था वो यहाँ पर शो नहीं होगा। और आउटलाइन का फायदा ये होता है कि हम इसमें जो है अपनी जो स्लाइड्स होती हैं इनको रीअरेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे ये थर्ड वाली सेकंड वाली पोजीशन पर चाहिए तो वो हम यहाँ पर कर सकते हैं, या सेकंड वाली को मुझे फर्स्ट के अंदर चाहिए तो वो भी मैं इसके अंदर कर सकता हूँ। तो ये हमारा आउटलाइन टैब होता है और ये हमारा स्लाइड टैब होता है। ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं स्टेटस बार की। स्टेटस बार हमारा एट द बॉटम ऑफ द विंडो होता है, ये हमारा स्टेटस बार होता है। जो भी हमारे पावर पॉइंट में वर्क हो रहा है उसका स्टेटस यहाँ पर शो होता है। जैसे अभी कुछ नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ शो नहीं हो रहा है, अगर मैं इसको सेव करूंगा तो यहाँ पर सेविंग के लिए उसकी प्रोसेसिंग दिखाएगा, ठीक है। इसके अगर हम बात करें लेफ्ट साइड में तो स्लाइड 1 ऑफ 1, स्लाइड 1 ऑफ 1 शो हो रहा था लेकिन अब हो रहा है 1 ऑफ 3। क्यों? क्योंकि मेरे पास 3 स्लाइड्स हैं। तो यहाँ पर जो 3 शो हो रहा है इट विल शो द टोटल नंबर ऑफ आवर स्लाइड्स इन प्रेजेंट इन आवर प्रेजेंटेशन। जितनी भी स्लाइड हमारी प्रेजेंटेशन में है उनके काउंट करके वो उसका नंबर यहाँ पर ये शो कर देता है। और यहाँ पर जो शो कर रहा है दैट इज 1, इट विल शो द करंट स्लाइड नंबर। जो अभी हमारी यहाँ पर ओपन है उसका स्लाइड का नंबर जो है, ये फर्स्ट स्लाइड है तो यहाँ पर फर्स्ट शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर सेकंड पर क्लिक करूंगा तो ये सेकंड स्लाइड यहाँ पर शो हो रही है, तो यहाँ पर भी 2 शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर थर्ड स्लाइड शो करूंगा तो यहाँ पर भी 3 शो हो जाएगा। उसके बाद है ऑफिस थीम, जो ये लिखा हुआ है इट विल शो द नेम ऑफ द थीम दैट इज यूज्ड इन आवर प्रेजेंटेशन। जो हमारी प्रेजेंटेशन में थीम यूज हुआ है उसका नाम यहाँ पर शो होता है। ये हमारा स्पेलिंग एरर्स फाइंड करने के लिए होता है, और ये हमारा लैंग्वेज जो हम यूज कर रहे हैं अपने इसमें, जैसे मैं इसमें अभी इंग्लिश जो है यूएस यूनाइटेड स्टेट्स की यूज कर रहा हूँ, या यहाँ पर इंग्लिश इंडिया, इंग्लिश यूके, जो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं वो जो लैंग्वेज आपको यहाँ पर लगानी होती है वो यहाँ पर शो होती रहती है। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा स्टेटस बार का। अब इसमें जो है हमारा नेक्स्ट है ऑफिस बटन, सॉरी व्यू बटन्स। तो हमारे जो एम एस पावर पॉइंट होता है ये 3 टाइप्स के व्यू हमें देता है। सबसे पहले जो आपने आपके सामने ये शो हो रहा है पूरा व्यू, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल व्यू। सेकंड होता है स्लाइड सॉर्टर व्यू, और थर्ड होता है हमारा स्लाइड शो व्यू। ठीक है, तो ये तीनों बटन यहाँ पर हमारे प्रेजेंट होते हैं। पहला नॉर्मल व्यू के लिए होता है, सेकंड होता है स्लाइड सॉर्टर के लिए, और थर्ड होता है स्लाइड शो के लिए। तो इन व्यूज के बारे में हम पढ़ेंगे, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे देता हूँ इनका। नॉर्मल व्यू जो आपको यहाँ पर अभी शो हो रहा है जिसमें हम अपनी एडिटिंग करते हैं, अपने स्लाइड्स की डिजाइनिंग करते हैं, वो हमारा होता है नॉर्मल व्यू के अंदर। ये हमारा नॉर्मल व्यू होता है। अब जो स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है उसमें हम क्या करते हैं कि अपने स्लाइड्स को रीअरेंज करने के लिए हम स्लाइड सॉर्टर का यूज करते हैं। लेआउट चेंज करना है, ठीक है, तो हम करते हैं स्लाइड सॉर्टर का यूज। स्लाइड सॉर्टर में हमें हमारी स्लाइड्स का मिनिएचर व्यू, जैसा कि आपको स्लाइड्स पेन में स्लाइड टैब में नजर आ रहा है, ठीक है, तो इस तरह का व्यू हमें स्लाइड सॉर्टर व्यू में नजर आता है। ये देखिए, ये है हमारा स्लाइड सॉर्टर व्यू। In slide sorter view we will get the miniature view of our slides, and the third one is slide show। मैं normal view पर चलता हूँ पहले, ठीक है। थर्ड वन है हमारा slide show view। This is the main important view। uh, as we know our presentation should be represent in the presence of the audience, then we will find out this in slide show। मतलब ये हुआ कि हमें स्लाइड शो जो है तब यूज करना होता है जब हमें इसको रिप्रेजेंट करना होता है प्रेजेंटेशन को ऑडियंस के सामने। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा या मतलब स्लाइड शो को रन करूंगा तो ये क्या होगा कि हमारे जितनी भी हमारी टैब्स है या जितना भी हमारा सब ये सब कुछ है ये सब चला जाएगा, और जो हमारी स्लाइड है ये हमारी फुल स्क्रीन पर शो होने लगेगी। देखते हैं क्या होता है। ये है
ये देखिए सारी जितनी भी कमांड्स थी या जितना भी हमारे बटन्स या अदर व्यूज थे वो सारे हमारे यहाँ से चले गए हैं, और जो हमारी स्लाइड थी वो मेरी फुल स्क्रीन पर शो होने लगी है। ठीक है, तो ये होता है हमारा स्लाइड शो व्यू। To exit from the slideshow view, just press the escape button present on the keyboard at the top left corner. ओके, नेक्स्ट इज नोट्स पेन। नोट्स पेन क्या होता है बेटा, जैसे आपके यहाँ पर टीचर आते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं अपने आइडियाज व्यूज को, या जो बुक का सिलेबस होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं आपके सामने, लेकिन वो आते हैं बोर्ड पर स्लाइड्स ड्रॉ करते हैं। ठीक है, उसी लेकिन अपने साथ में उनके पास एक नोट्स भी होता है, तो वो होते हैं हमारे नोट्स या टीचर्स के नोट्स। ठीक है, इसी तरह से जब आप अपनी स्लाइड को किसी ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करने जाओगे, तो आप अगर हार्ड कॉपी लेकर जाओगे नोट्स के तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो उसके लिए MS पावर पॉइंट ने हमें एक फीचर दिया है नोट्स का, जैसे कि आप देख रहे हैं क्लिक टू ऐड नोट्स यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो नोट्स होता है, ये यहाँ पर आप अपने नोट्स लिख सकते हैं, छोटे छोटे नोट्स बनाए जाते हैं, लेकिन ये स्लाइड शो के टाइम पर हाइड हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये शो नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे मैं इससे एग्जिट होता हूँ तो मुझे नोट्स अपने समझ में आ रहे हैं कि हाँ मुझे यहाँ पर क्या कहना है, या मुझे अगर इससे पहले कुछ लर्न करना है, अपने नोट्स अपने बनाने हैं, कि मुझे रिप्रेजेंट करने से पहले उन चीज़ों को जरूर देख लेना है, तो मैं वहाँ पर यहाँ पर वो चीज़ें लिखता हूँ। ठीक है, इसके बाद आता है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्प्लिटर बार। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्प्लिटर बार क्या होता है, जो हमारा जो ये वर्क एरिया होता है, ठीक है, और जो स्लाइड टैब्स होते हैं या नोट्स पेन होता है, इनको जो स्प्लिट करता है आपस में उसको हम बोलते हैं स्प्लिटर बार। जैसे ये हमारा वर्क एरिया है, या मैं कह सकता हूँ स्लाइड्स पेन है, इसके बाद ये है हमारा स्लाइड टैब्स। तो इनको दोनों को अगर कोई स्प्लिट करता है, डिवाइड करता है, तो वो एक लाइन है, इस लाइन को ही हम बोलते हैं स्प्लिटर बार। और इसको हम मूव करा करके अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू अस हम इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए, वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ अवर टैब्स एंड द पेन। ठीक है, ऐसे ये था हमारा वर्टिकल। दूसरा होता है हमारा हॉरिजॉन्टल, तो वो होता है हमारा नोट्स पेन का और स्लाइड्स पेन का। ठीक है, तो ये हमारा ये जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं स्प्लिटर बार। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ ओवरव्यू। अब हम बात करते हैं हाउ टू क्रिएट अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन, मतलब स्क्रैच से हमें प्रेजेंटेशन बनानी है, तो वो हम कैसे बनाएंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जाएंगे ऑफिस बटन पर, या हम कह सकते हैं इसको फाइल टैब। फाइल टैब कहा जाता था इसको, लेकिन अब इसका नाम चेंज करके ऑफिस बटन रख दिया गया है। तो हम इसको ऑफिस बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम ऑफिस बटन पर क्लिक करेंगे हमारे सामने कमांड्स ओपन होंगी। इन कमांड्स में से हमें सिलेक्ट करना है न्यू। न्यू पर हम क्लिक करेंगे, हमारे सामने डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर को सिलेक्ट करेंगे। ब्लैंक प्रेजेंटेशन को सिलेक्ट करने के बाद हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे। जैसे हम क्रिएट पर क्लिक करते हैं तो हमारी एक नई प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाती है। हमें जो कुछ भी इसमें बनाना है, जो कुछ लिखना है, जो डिजाइन करना है, वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन फ्रॉम द स्क्रैच यूजिंग ब्लैंक प्रेजेंटेशन। सेकंड होता है, अगर आपको थोड़ा सा कुछ किक मिल जाए तो उसके लिए हम यूज करते हैं टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स क्या होता है, by using the templates we can create our presentation quickly and easily. Template give us an initial foundation to build a presentation, which contains various themes, theme colors, effects, background styles, layouts and etc. Means जो टेम्पलेट्स होता है वो हमें एक बेसिक फाउंडेशन, इनिशियल फाउंडेशन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, और हमारे जो टेम्पलेट्स होते हैं उसमें थीम्स पहले से ही सिलेक्ट होता है, कलर जो थीम्स के कलर होते हैं वो पहले से सिलेक्ट होते हैं, इफेक्ट्स कौन से डालने हैं कहाँ पर, बैकग्राउंड स्टाइल कौन सा लगाना है, और लेआउट्स हमें कौन सा यूज करना है, ये सारे पहले से ही सिलेक्टेड होता है। तो उसको हम बोलते हैं बिल्ट इन टेम्पलेट्स। MS पावर पॉइंट हमें ये फीचर प्रोवाइड कराता है अपनी प्रेजेंटेशन को स्क्रैच से ना बना करके
एक जो है टेम्पलेट यूज करके उसको थोड़ा सा फाउंडेशन मिल जाती है और हम उसको बना सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होता है, फाइल टैब में या ऑफिस बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं फाइल मेन्यू ओपन होता है, न्यू पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के जैसे ही यहाँ पर हमारे ये लिस्ट बनी हुई है, इसमें हम जाते हैं इंस्टॉल्ड टेम्पलेट्स के अंदर। इंस्टॉल टेम्पलेट्स पर हम क्लिक करते हैं तो जितने भी टेम्पलेट्स हमारे MS पावर पॉइंट में या कहें तो इस कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी टेम्पलेट्स हमारे इंस्टॉल्ड हैं वो सारे यहाँ पर शो हो जाते हैं। अगर हमें इनसे अलग चाहिए तो हम उसको पहले ऑनलाइन या इंटरनेट से कह सकते हैं, इंटरनेट से हम उसको डाउनलोड करते हैं और अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं तो वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली शो हो जाता है। अब मान लीजिए मुझे जो है यहाँ पर ये टेम्पलेट यूज करना है क्विज शो का, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जो भी आपको चाहिए होता है आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं मान लेता हूँ मुझे क्विज शो चाहिए, ठीक है, तो मैं क्विज शो पर क्लिक करूंगा और उसके बाद क्लिक करूंगा क्रिएट बटन पर। जैसे ही मैं क्रिएट बटन पर क्लिक करूंगा तो मेरा पहले से ही जो टेम्पलेट बना हुआ है वो मेरा यहाँ पर शो हो गया है, ठीक है। देखिए अब जो मैंने पहले प्रेजेंटेशन इंसर्ट की थी फ्रॉम द स्क्रैच, अगर मैं बात करूं इसकी, तो इसमें सिर्फ मेरी एक स्लाइड आई थी और वो भी ब्लैंक स्लाइड थी। अगर मुझे उसमें कुछ और बनाना है तो मुझे स्लाइड इंसर्ट करनी पड़ेगी, मुझे इसका फ़ॉन्ट स्टाइल अपने हिसाब से सेट करना पड़ेगा, फ़ॉन्ट साइज अपने हिसाब से सेट करना पड़ेगा, फ़ॉन्ट कलर अपने हिसाब से सेट करना पड़ेगा। तो ये सारे ड्रॉबैक्स जो थे ये सारे बिल्ट इन टेम्पलेट्स का यूज करके हम इसको हटा सकते हैं। जैसे कि देखिए जो मेरा यहाँ पर ये टाइटल लिखा हुआ है इसमें शैडो यूज हो रही है, इसमें यहाँ पर ये एक इमेज यूज हो रही है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन एंड आंसर जो मेरा सैंपल एंड टेक्निक्स ये सब चीजें ये पहले से शो हो रहे हैं। मैं इनको एडिट करके अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। और उसमें जो थे स्क्रैच वाले में उसमें क्या हुआ था कि सिर्फ एक स्लाइड मेरी यहाँ पर आई थी और अगर मुझे करना होता तो मुझे फिर यहाँ पर न्यू स्लाइड इंसर्ट करनी पड़ती। लेकिन अब मेरे पास क्या है, मेरे पास पहले से ही थीम मेरा सिलेक्टेड है, लेआउट मेरे सिलेक्टेड हैं, जो कलर्स सॉरी जो कलर्स मेरे मुझे यूज करने हैं वो सारे यहाँ पर पहले से सिलेक्टेड है और कुछ स्लाइड्स मेरी बनी हुई भी है। देखिए जैसे लिखा हुआ है हाउ टू यूज द क्विज शो टेम्पलेट, इसमें ये बताया गया है कि टेम्पलेट को कैसे यूज करना है, ठीक है। सैम्पल क्वेश्चन एंड आंसर्स, इसमें क्वेश्चन ये सारे मतलब मैं इनको एडिट करके अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये था मेरा बिल्ट इन यूजिंग द बिल्ट इन टेम्पलेट्स हाउ टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन इन MS पावर पॉइंट। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सेलेक्टिंग स्लाइड लेआउट, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, मैं चलता हूँ अपनी जो ब्लैंक वाली थी उस पर चलते हैं क्योंकि जो सॉरी जो बिल्ट इन टेम्पलेट्स था उसका तो पहले से ही लेआउट वगैरह सब चीज़ सिलेक्टेड होते हैं। हाँ हम उनको चेंज कर सकते हैं लेकिन मैं उसको चेंज नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं आपको स्क्रैच से दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे हम इसको चेंज करते हैं। तो इसको चेंज कैसे किया जाता है, लेआउट पहले मैं बता देता हूँ कि लेआउट होता क्या है। लेआउट इज वी कैन से द पोजिशन ऑफ अवर टेक्स्ट, our images or any other objects like graphic elements, shapes and etc. The position of these things is called the layout of the slide, ठीक है। तो इसको हमें चेंज कैसे करना है, जस्ट गो टू द होम टैब, इन होम टैब find out the slide group, in slide group we will get the layout button or click on layout button and we will find 9 लेआउट्स इन MS पावर पॉइंट। ये 9 टाइप्स के लेआउट हैं, जो भी आपको यूज करने हैं वो यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट वी आर गेटिंग टाइटल स्लाइड, देखिए यहाँ पर बाय अगर मैं इसकी बात करूँ तो बाय डिफॉल्ट जो है मेरा टाइटल स्लाइड मिला हुआ है। अगर मुझे इसको चेंज करना है तो मैं यहाँ से इसको चेंज कर सकता हूँ, जो लेआउट मुझे चाहिए होता है वो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर सकता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी अगले क्लास में हम आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। ओके।